Namaskar and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel Asit Government Rule Guru. Today, I will discuss fundamental rules FR Rule 1 to 9. It is the first part. Then, in subsequent time, I will bring other rules related to the fundamental rule. So, my friends, please subscribe my channel Asit Government Rule Guru so that you can get notification for my upcoming videos. So my friends, this video it is very useful for different exams like principal exam, office superintendent, LDC, UDC and other departmental exams and other departmental promotion exams. So my friends, please subscribe my channel, please share my video, like it and also comment it so that I can rectify. Due to your comment, it means I can rectify my video in subsequent time. Also in description box my telegram channel link is there. Please click on it and join it so that you can get all the videos. So now I am going to start fundamental rules FR rule 1 to 9. First one, FR1 short title and commencement. These rules come into force from 1/1/1922. It is very important one. Okay, 1st January 1922 this rule came into force. It's very important one. FR2 applicability. These rules apply subject to the provisions of Rule 3 to all government servants whose pay is debitable to civil estimates and to any other class of government servants to which the President may by general or special order declare them to applicable. किसके लिए फंडामेंटल रूल एप्लीकेबल है? जो सिविलियन गवर्नमेंट सर्वेंट्स है, ठीक है, जिनका सैलरी एक्चुअली डेबिट होता है सिविल एस्टिमेट से, बेसिकली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन, स्टेट और यूनियन टेरिटरी से, and to any other class of government servants to which the president basically the honorable president by general और special order वो डिक्लेयर करते हैं कि ये रूल उनके लिए एप्लीकेबल होगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है. तो आपको यहाँ पर बेसिकली रिमेंबर करना है, बेसिकली सिविलियन गवर्नमेंट सर्वेंट्स और गवर्नमेंट सर्वेंट्स हुज पे इज डेबिटेबल टू सिविल एस्टिमेट्स and second one also the honorable president by बेसिकली जनरल और स्पेशल ऑर्डर. ओके, ये रूल एप्लीकेबल होता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चीज़ को आपको याद रखना है. चलो चलेंगे. नेक्स्ट वन एप्लीकेबिलिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. टू सिविलियंस टेम्पोररली ट्रांसफर टू सर्विस पेड फ्रॉम डिफेंस एस्टिमेट्स. कभी कभी हमारा जो सिविलियन एम्प्लॉयज़ है वो टेम्पोररी पीरियड के लिए ट्रांसफ़र हो जाते हैं डिफेंस एस्टिमेट डिपार्टमेंट में, तो उनके लिए भी एप्लीकेबल होगा. बिकॉज ओनली फॉर टेम्पोररी पीरियड ऑफ टाइम दे ट्रांसफ़र टू डिफेंस एस्टिमेट्स. तो उनके लिए भी ये रूल एप्लीकेबल होगा क्योंकि वो टेम्पोररी पीरियड के लिए सिविलियन एम्प्लॉयज़ वो डिफेंस एस्टिमेट्स में जाकर काम करते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. चलो FR3 दीज रूल्स डू नॉट अप्लाई टू गवर्नमेंट सर्वेंट्स हुज कंडीशंस ऑफ सर्विस आर गवर्नड बाय आर्मी और मेराइन रेगुलेशंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जिनका सर्विस गवर्न होता है बाय आर्मी और मेराइन रेगुलेशंस के हिसाब से ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वेरी सिंपल है, याद रखना है. बेसिकली द सर्विस ऑफ दोज गवर्नमेंट सर्वेंट्स गवर्न बाय आर्मी और मेराइन रेगुलेशंस एक्चुअली दिस रूल डू नॉट अप्लाई टू देम. और जो FR4 है वो डिलीट हुआ है, FR5 भी डिलीट हुआ है. चलो नेक्स्ट FR5A, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. पावर टू रिलैक्स द रूल इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस. जो FR5A है, where any ministry or department of government is of opinion that the operation of any of these rules may cause undue hardship to any person, that ministry or department as the case may be, may by order for reasons to be recorded in writing relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner. तो यहाँ पर जो है कि क्या है, कभी कभी क्या है
चाहे कोई डिपार्टमेंट है, कोई मिनिस्ट्री है, उनका ओपिनियन है कि इसमें थोड़ा जो रूल है वो एक्चुअली बहुत हार्ड हो रहा है रूल। बेसिकली इट क्रिएट्स अननेसेसरी हार्डशिप टू एनी एम्प्लॉई, बेसिकली अनड्यू हार्डशिप हो जाता है रूल। तो वो रूल को रिलैक्स किया जाएगा, रिलैक्स कर सकते हैं मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, वो रूल को रिलैक्स कर सकता है, मगर उसका रीज़न एक्चुअली रिकॉर्डेड होगा, ऑथेंटिक रीज़न रिकॉर्डेड होगा और जस्टिफाई किया जाएगा। इसी कारण के वजह से एक्चुअली वो रूल पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए हार्डशिप हो रहा था, तो उसको थोड़ा रिलैक्स कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पर है प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑर्डर शैल बी मेड एक्सेप्ट विद द कंकरेंस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो यहाँ पर है ये यदि कोई रूल ऐसा हार्ड रूल होता है उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल किया जाएगा, उसका रीजन भी रिकॉर्ड किया जाएगा, मगर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का परमिशन लेना है। विदाउट परमिशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक्चुअली इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस एनी पावर और एनी टाइप ऑफ रूल कैन नॉट बी रिलैक्स्ड। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑर्डर शैल बी मेड एक्सेप्ट विद द कंकरेंस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके, तो कोई भी ऐसा हार्ड रूल होता है चाहे कोई मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में, और उसको थोड़ा रिलैक्स किया जा सकता है। जहाँ पर किया जाएगा वहाँ पर रीजन रिकॉर्डेड किया जाएगा, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का परमिशन लेने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो जो रूल थोड़ा हार्ड होता है कि बेसिकली इट क्रिएट्स अननेसेसरी हार्डशिप और बेसिकली इट इज़ अनड्यू हार्डशिप फॉर एनी एम्प्लॉय, तो उसको थोड़ा रिलैक्स किया जाएगा और उसका रीज़न भी मेंशन किया जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का परमिशन के बाद। ये रूल 5A है। नेक्स्ट चलेंगे वही हिंदी में, वही FR 5A को विशेष परिस्थितियों में नियम में ढील देने की शक्ति। जहां सरकार के किसी मंत्रालय या विभाग की राय है कि इन नियमों में से किसी के संचालन से किसी व्यक्ति को अनुचित कठिनाई हो सकती है, वह मंत्रालय या विभाग जैसा भी मामला हो आदेश द्वारा लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए उस नियम की आवश्यकताओं को इस हद तक और ऐसी शर्तों के अधीन जैसा कि वह मामले को न्याय संगत और न्याय संगत तरीके से निपटने के लिए आवश्यक समझे, बशर्ते कि वित्त मंत्रालय की सहमति के बिना ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जाएगा। वही चीज़ में बताया, उसको थोड़ा हिंदी में उसको ट्रांसलेट कर दिया गया है कि वही चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो कोई ऐसा रूल वो बेसिकली इट क्रिएट्स अनड्यू हार्डशिप रिलेटेड टू द एम्प्लॉई, और वो रूल को थोड़ा रिलैक्स किया जा सकता है और वहाँ पर रीजन रिकॉर्डेड किया जाएगा क्यों बेसिकली किस तरीके का हार्डशिप हो रहा था वो पावर और रूल के वजह से, और उसको फ्लेक्सिबल कर दिया गया और रिलैक्स थोड़ा कर दिया गया बेसिकली फाइनेंस मिनिस्ट्री और वित्त मंत्रालय के सहमति से। राइट, चलो नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे। डेलीगेशन ऑफ पावर्स। FR 6 है, जो डेलीगेशन ऑफ पावर्स के ऊपर क्वेश्चन आता है। आपको फंडामेंटल रूल जो 6 है इट इज़ रिलेटेड टू द डेलीगेशन ऑफ पावर्स, आपको याद रखना है। वही पर्टिकुलर रूल के ऊपर आएगा कि किस फंडामेंटल रूल का किस रूल में बेसिकली डेलीगेशन ऑफ पावर्स दिया गया है, वो FR 6। द सेंट्रल गवर्नमेंट में डेलीगेट टू एनी ऑफ इट्स ऑफिसर्स subject to any conditions which may think fit to impose any powers conferred upon it these rules with the following exceptions: all power to make rules, the other powers conferred by rule 6, 9, 6B, 44, 45A, 45B, 45C, 83, 180A, 119, 121 and 127C। आगे में रूल देखेंगे। तो यहाँ पर डेलीगेशन ऑफ पावर्स दिया गया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी ऑफिसर को डेलीगेशन ऑफ पावर दे सकता है, मगर उसमें कुछ एक्सेप्शंस है कि ऑल पावर टू मेक रूल्स, सभी पावर को रूल बनाना, ये एक्चुअली ये नहीं हो सकता। सभी पावर को रूल बनाना ऐसा है कि सपोज एक पर्टिकुलर ऑफिसर को डेलीगेशन ऑफ पावर दे दिया गया और वो कोई भी पावर को रूल बना सकता है, ऐसा नहीं। तो विद द फॉलोइंग एक्सेप्शंस, इन दोनों को छोड़ के जो A B है, ऑल पावर टू मेक रूल्स, ये नहीं हो सकता। और जो नेक्स्ट है जो रूल्स है वो आगे में हम देखेंगे, उसमें भी उसका पावर नहीं है कि वहाँ पर एक नया रूल क्रिएट वो कर सकता है। राइट, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेसिकली वो एक एनी ऑफिसर को डेलीगेशन ऑफ पावर दे सकता है। ठीक है,
और पावर्स कन्फर्ड अपन इट दीज रूल्स विद द फॉलोइंग, ये दोनों को छोड़ के, जो ए बी में है दोनों को छोड़ के, राइट। तो अभी देखेंगे उसका हिंदी वर्सन देख लीजिए। FR6 शक्तियों का प्रत्यायोजन। केंद्र सरकार अपने किसी भी अधिकारी को किसी भी शर्त के अधीन जिसे वह लागू करना उचित समझे इन नियमों को प्रदान की गई किसी भी शक्ति को निम्नलिखित अपवादों के साथ प्रत्यायोजित कर सकती है। नियम बनाने की सभी शक्ति, और बी में नियम 696B, 44, 45A, 45B, 45C, 83, 108A, 119, 121 और 127C, और ये सब है जो FR6 में वही चीज़ है। ओनली यहाँ पर ये दो चीज़ को छोड़ के, ओके, वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी ऑफिसर को डेलीगेशन ऑफ पावर दे सकता है, वहाँ पर वो एक्चुअली रूल्स क्रिएट कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि सभी पावर को वो रूल बनाएंगे। और ऐसा कुछ अदर सेक्शन में है जो फंडामेंटल रूल आगे में देखेंगे कि उसमें उनका इंटरफियरेंस रहेगा, राइट। तो ये दो चीज़ को आपको ध्यान देना है। चलो नेक्स्ट FR7 को चलेंगे। एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में डेलीगेट पावर टू इट्स ऑफिसर ओनली इन कंसल्टेशन विथ फाइनेंशियल डिपार्टमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफिसर को डेलीगेशन पावर दे सकता है, मगर आफ्टर कंसल्टेशन विथ फाइनेंस डिपार्टमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट का सहमति बिना से कोई भी ऑफिसर को डेलीगेशन पावर नहीं दिया जाएगा। ये फंडामेंटल रूल 7 में दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है कोई भी सरकारी विभाग अपने अधिकारी को शक्ति प्रत्यायोजित कर सकता है केवल वित्त विभाग के परामर्श से। तो आफ्टर कंसल्टिंग विथ फाइनेंस डिपार्टमेंट एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कैन गिव द डेलीगेशन ऑफ पावर टू इट्स ऑफिसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो रूल 8 को चलेंगे। रीडेलीगेशन ऑफ पावर्स, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीडेलीगेशन ऑफ पावर्स बाय एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज। एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज कैन रीडेलीगेट पावर्स टू द सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल मैटर्स एक्सेप्ट द फॉलोइंग। रीडेलीगेशन ऑफ पावर दिया जा सकता है सबऑर्डिनेट ऑफिसर को, मगर ऐसा कुछ चीज़ है वहाँ पर एक्चुअली रीडेलीगेशन ऑफ पावर नहीं दिया जाएगा। क्रिएशन ऑफ पोस्ट, ये पावर नहीं दिया जाएगा। एक पोस्ट को क्रिएट करना, इस तरीके का पावर सबऑर्डिनेट को नहीं दिया जा सकता। राइट ऑफ लॉसेस, सपोज एनी पेकुनियरी लॉस फेस बाय द गवर्नमेंट बेसिकली ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय की नेग्लिजेंस से सपोज गवर्नमेंट को कुछ लॉस हो रहा है, पेकुनियरी लॉस हो रहा है, और उसको राइट ऑफ, उसको वो लॉस को एक्चुअली हटा देना, इसका कोई सबऑर्डिनेट ऑफिसर का जो डेलीगेशन पावर दिया गया है उसका पावर नहीं है कि वो जो गवर्नमेंट को जो पेकुनियरी लॉस हुआ है वो उसको हटा सकता है। ऐसा कुछ पावर नहीं है। थर्ड वन, री अप्रोप्रिएशन एक्सीडिंग 10% ऑफ द ओरिजिनल बजट प्रोविजन। जो ओरिजिनल बजट प्रोविजन है उससे 10% ज़्यादा, ओके, जो ओरिजिनल बजट प्रोविजन दिया गया है उसका 10% से ज़्यादा वो एक्चुअली जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर को रीडेलीगेशन पावर दिया गया है वो उसको रीअप्रोप्रिएट कर सकता है। ये तीनों चीज़ में एक्चुअली जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर को डेलीगेशन पावर दिया गया है, इस तीनों चीज़ में नहीं दिया गया है। वो पोस्ट क्रिएट नहीं कर सकता, जो गवर्नमेंट का लॉस है, जो एम्प्लॉय के वजह से गवर्नमेंट का लॉस हुआ है उसको नहीं हटा सकता है, और ये है ओरिजिनल बजट प्रोविजन से 10% से ज़्यादा को वो रीअप्रोप्रिएट नहीं कर सकता है। तो ये तीनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आता है, समझ में आ रहा है। तो रीडेलीगेशन ऑफ पावर सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को दिया जाएगा, मगर ये तीनों चीज़ों में नहीं। बेसिकली इट मीन्स he or she cannot create the post, he or she it means does not write up the losses, and also they are having no power to reappropriate exceeding 10% of the original budget provision। इसको थोड़ा आप देख लीजिए हिंदी में। प्रशासनिक मंत्रालय अधीनस्थों को शक्तियाँ पुनः प्रत्यायोजित कर सकते हैं निम्नलिखित को छोड़कर। सभी मामलों के संबंध में प्राधिकरण पदों का निर्माण, घाटे का बट्टे खाते में डालना, और थर्ड मूल बजट प्रावधान के 10% से अधिक का पुनर्विनियोजन। तो ये तीनों चीज़ जो है, क्रिएशन ऑफ पोस्ट और जो राइट ऑफ लॉसेस और जो बेसिकली रीअप्रोप्रिएशन एक्सीड्स 10% ऑफ द ओरिजिनल बजट, ये तीनों में एक्चुअली पावर नहीं है। हाँ ठीक है,
और सबऑर्डिनेट ऑफिसर को रीडेलीगेशन पावर दिया जाएगा, मगर ये तीनों में नहीं, ये तीनों को छोड़कर, राइट। चलो नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे। द फंडामेंटल रूल 8, द पावर्स ऑफ इंटरप्रेटिंग दीज रूल्स आर रिजर्व टू द प्रेसिडेंट। ये जो इंटरप्रिटेशन है, ये जो रूल्स का जो इंटरप्रिटेशन एक्चुअली वो बेसिकली ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास है। वो उसको रेगुलरली ये रूल्स को इंटरप्रेट करेंगे और कुछ नया वो चाहेंगे तो कुछ ऐसा नया रूल को इंसर्ट कर सकते हैं। इन नियमों की व्याख्या करने की शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास सुरक्षित हैं। ये भी इंटरप्रिटेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ओनली ऑनरेबल प्रेसिडेंट का पावर है, वो उसको बेसिकली इंटरप्रेट करेंगे, एनालाइज करेंगे और चाहेंगे तो कुछ इसमें नया रूल इंसर्ट कर सकते हैं। चलो FR9 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत कुछ चीज़ है, अभी हम देखेंगे। FR9 में फर्स्ट वन, अनलेस देयर बी समथिंग रिपग्नांट इन द सब्जेक्ट और कंटेस्ट द टर्म्स डिफाइंड आर यूज्ड इन द रूल्स इन द सेंस हियर एक्सप्लेन्ड। जब तक विषय या संदर्भ में कुछ प्रतिकूल न हो, शर्तें परिभाषित अर्थों में नियमों में उपयोग किया जाता है, यहाँ समझाया गया है। आप देख लीजिए फर्स्ट वन, एक्ट, इट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। एडमिनिस्ट्रेटर का कैसे डिफाइन किया गया है, देखिए फंडामेंटल रूल में, an administrator of a union territory appointed by the president under article 239 of the constitution। तो जो यूनियन टेरिटोरी का एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाता है आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट, आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। एंड इसमें इंक्लूड्स है द गवर्नर ऑफ आसाम, इंक्लूड है द गवर्नर ऑफ आसाम एक्टिंग एज एजेंट टू द प्रेसिडेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। तो वो एक्चुअली जो गवर्नर ऑफ आसाम है वो ऑनरेबल प्रेसिडेंट का एजेंट के आकार में काम करते हैं, बेसिकली नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी साइड में। तो यहाँ पर दो चीज़ आपको याद रखना है। जो आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन है कि द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ए यूनियन टेरिटोरी अपॉइंटेड बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट, एंड सेकेंड वन बेसिकली द गवर्नर ऑफ आसाम एक्टिंग एज एजेंट टू द प्रेसिडेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है, ये 1A जो रूल 9 1 जो है एक्ट के ऊपर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और जो रूल 1A है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर को एक्सप्लेन किया गया है। कभी कभी रूल पूछ लेता है। अलॉटमेंट देखेंगे, वही फंडामेंटल रूल 9 1B अलॉटमेंट, ग्रांट ऑफ लाइसेंस टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट टू ऑक्यूपाई ए हाउस ओन्ड, लीज और इक्विशन्ड बाय द गवर्नमेंट और ए पोर्शन देयरऑफ फॉर यूज बाय हिम एज रेसिडेंट्स। जब कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अकोमोडेशन फैसिलिटी, रेसिडेंशियल फैसिलिटी दिया जाता है तो वो लाइसेंस पे करता है, एक मंथली लाइसेंस फिक्स होता है, वो लाइसेंस पे करता है, वो रेंट नहीं है, वो लाइसेंस पे किया जाता है। तो इसको याद रखना है अलॉटमेंट के ऊपर। जब गवर्नमेंट क्वार्टर अलॉट होता है गवर्नमेंट सर्वेंट को, कोई अकोमोडेशन फैसिलिटी दिया जाता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, तब वो एक लाइसेंस पे करता है, वही अलॉटमेंट रिलेटेड मैटर है। उसका जो 2 है 1B 2 नॉट प्रिंटेड 3 डिलीटेड है। कैडर रूल को चलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैडर बेसिकली द स्ट्रेंथ ऑफ द सर्विस, द स्ट्रेंथ ऑफ द सर्विस और ए पार्ट ऑफ सर्विस सैंक्शनड एज सेपरेट यूनिट। कैडर रूल में क्या है, जैसे आफ्टर स्पेसिफिक टाइम प्रमोशन होगा, ठीक है। जैसे हमारा जो टीचिंग लाइन में जैसे TGT टू PGT, PGT टू सपोज प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, देन असिस्टेंट कमिश्नर, देन डेप्यूटी कमिश्नर, ये जो है ये कैडर रूल के हिसाब से है, ठीक है। तो बेसिकली आप केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति, यहाँ पर जो कैडर रूल है वहाँ पर जो टाइम पीरियड होता है, वो टाइम पीरियड जब आ जाता है बेसिकली वहाँ पर क्या है ना, प्रमोशन होता है, ठीक है। वही है कैडर रूल, द स्ट्रेंथ ऑफ द सर्विस और ए पार्ट ऑफ द सर्विस सैंक्शनड एज सेपरेट यूनिट। में जैसे बताया आपको PGT टू वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, देन असिस्टेंट कमिश्नर, देन डेप्यूटी कमिश्नर, तो देन सपोज जॉइंट कमिश्नर, ये जो है कैडर रूल के हिसाब से प्रमोशन होता है, ठीक है। ये कैडर है। तो सभी डिपार्टमेंट में बेसिकली कैडर रूल होता है, ओके। स्पेसिफिक टाइम में एम्प्लॉयज़ का प्रमोशन होता है, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी होता है, DPC होता है। बेसिकली आपका टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद आपको सिलेक्शन स्केल मिलता है और प्रमोशन भी होता है, राइट। ये सब कैडर रूल के वजह से है।
चलो कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है रूल 9 का, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। अलाउंस ग्रांटेड टू मीट पर्सनल एक्सपेंडिचर नेसेसिटेड बाय स्पेशल सर्कमस्टांसेस, टू मीट पर्सनल एक्सपेंडिचर and special circumstances in which duty is performed, it includes travelling allowance। इसमें travelling allowance इंक्लूड होगा, बट डज नॉट इंक्लूड सम्पटुअरी अलाउंस। सम्पटुअरी अलाउंस क्या है? बेसिकली ये अभी अबोलिश हो चुका है जो 7th पे कमीशन लागू होने से। सम्पटुअरी अलाउंस क्या है? कोई सपोज एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन होता है, वहाँ पर जैसे ऑफिसर्स होटल अकोमोडेशन में रहते हैं और उसका सेल्स प्रमोशन किया जाता है, ये सब जो खर्च होता है वो सम्पटुअरी अलाउंस में आता है, मगर अभी वो डिलीट हो चुका है। तो बेसिकली कॉम्पेंसेटरी अलाउंस क्या है? जब पर्सनल एक्सपेंडिचर बेसिकली इनकर्ड बाय द एम्प्लॉई इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस बेसिकली टू मीट द पब्लिक ड्यूटी। ओके, जब पब्लिक ड्यूटी के समय यदि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई कोई पर्सनल एक्सपेंडिचर मीट करता है स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, वो आता है कॉम्पेंसेटरी अलाउंस। एक स्पेशल अलाउंस मिलता है, वहाँ पर उसको कॉम्पेंसेटरी अलाउंस कहा जाता है, इंक्लूडिंग ट्रैवलिंग अलाउंस। जब ट्रैवल करता है बेसिकली कंसर्न एम्प्लॉई ऑफिशियल ड्यूटी में ट्रैवल करता है और उसमें कुछ एडिशनल एक्सपेंडिचर होता है, कुछ पर्सनल एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, जो पर्सनल एक्सपेंडिचर को मीट किया जाता है उसको कॉम्पेंसेटरी अलाउंस कहा जाता है। वही है, तो क्लियर? तो इसमें ट्रैवलिंग अलाउंस इंक्लूड है, अदर टाइप ऑफ अलाउंस इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो यही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अलाउंस ग्रांटेड टू मीट पर्सनल एक्सपेंडिचर नेसेसिटेड बाय स्पेशल सर्कमस्टांसेस इन व्हिच ड्यूटी इज परफॉर्म्ड, इट इंक्लूड्स ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस भी इंक्लूड है। ऐसा कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में यदि एम्प्लॉय कुछ पर्सनल एक्सपेंडिचर मीट करता है, क्यों वो ऑफिशियल ड्यूटी करता है और कुछ पब्लिक डीलिंग करता है, ऑफिशियल ड्यूटी में कुछ पर्सनल एक्सपेंडिचर होता है, ओके, तो उसके लिए उसको कॉम्पेंसेटरी अलाउंस मिलता है। वैसा ही वो ट्रैवलिंग अलाउंस हम जो बोलते हैं, हम जब ट्रैवल करते हैं ट्रेनिंग के टाइम, हम ट्रेनिंग लेने के लिए ट्रैवल करते हैं कि कोई ड्यूटी हमको अदर हमारा हेडक्वार्टर के इन एनी अदर हेडक्वार्टर सपोज हमको कुछ ड्यूटी असाइन किया जाता है, उस समय जो हम ट्रैवल करते हैं और जो पर्सनल एक्सपेंडिचर मीट करते हैं, वहाँ पर हमको बेसिकली जो भी पर्सनल एक्सपेंडिचर हम मीट करते हैं जर्नी टाइम में, वो हमको मिलता है, वो भी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस में इंक्लूड होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल 9(5) फंडामेंटल रूल 9(5) में कॉम्पेंसेटरी अलाउंस के ऊपर है। चलो आगे में चलेंगे। ड्यूटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसको हम ड्यूटी में इंक्लूड करेंगे, किसको नहीं करेंगे। यहाँ पर दिया है ड्यूटी इंक्लूड सर्विस एज प्रोबेशनर और अप्रेंटाइज, सच सर्विस इज फॉलोड बाय कन्फर्मेशन। क्योंकि हम फर्स्ट प्रोबेशन में रहते हैं तो प्रोबेशन पीरियड के बाद बेसिकली कन्फर्मेशन होता है। बेसिकली प्रोबेशन पीरियड होता है 2 ईयर्स, तो वो बेसिकली प्रोबेशन पीरियड में जो जॉब होता है वो टेम्पररी होता है और इमीडिएटली वो फिर 2 ईयर्स के बाद परमानेंट हो जाता है। तो जो प्रोबेशन पीरियड में जो एम्प्लॉई, जो कंसर्न एम्प्लॉई काम करता है वो भी ड्यूटी में जाएगा, ठीक है। तो सर्विस आज प्रोबेशनर और अप्रेंटाइज, सच सर्विस इज फॉलोड बाय कन्फर्मेशन, राइट। तो ऑटोमेटिकली 2 ईयर्स के बाद कन्फर्मेशन होता है। 2 ईयर्स एक्चुअली बेसिकली जज किया जाता है कि जो ड्यूटी असाइन किया गया है कंसर्न एम्प्लॉय को वो ठीक से कर रहा है कि नहीं। ओके, बेसिकली ये गवर्नमेंट जॉब का रूल है। तो 2 ईयर्स के बाद ऑटोमेटिकली जो प्रोबेशन पीरियड है वो ख़त्म हो जाता है और कन्फर्मेशन हो जाता है और एम्प्लॉय परमानेंट हो जाता है। और जॉइनिंग टाइम, यदि हमारा ट्रांसफ़र होता है तो हमको जॉइनिंग टाइम मिलता है। एक जगह में हम इट मीन्स रिलीव हो जाता है, दूसरे जगह में हम ज्वाइन करेंगे, तो वो जो पीरियड चला जाता है वो जॉइनिंग टाइम होता है, वो भी ड्यूटी पीरियड में जाएगा। ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये दोनों को याद रखना है। ड्यूटी इंक्लूड्स बोथ। नेक्स्ट वन, ए गवर्नमेंट सर्वेंट में बी ट्रीटेड एज ऑन ड्यूटी, और कुछ ड्यूटी पीरियड को ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। बेसिकली ड्यूटी में ऐसा कुछ गवर्नमेंट कुछ काम को ड्यूटी में इंक्लूड किया जाएगा, देखेंगे। ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग इन इंडिया, बेसिकली जो हम ट्रेनिंग लेते हैं, कुछ ऐसा कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग वो भी ड्यूटी में जाएगा, राइट, वो भी ड्यूटी में जाएगा। इसको आपको याद रखना है, राइट, इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट वन, इन केस ऑफ ए स्टूडेंट stipendary or otherwise who is entitled to be appointed to the service of government on passing through a course of training at a university, college or school in India during the interval between the satisfactory completion of the course and his assumption of duties। बेसिकली कोई स्टूडेंट उसको स्टाइपेंड मिलता है, उसको ट्रेनिंग मिलता है यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल में, और सक्सेसफुली वो ट्रेनिंग ख़त्म करता है और उसके बाद उसको ड्यूटी असाइन किया जाता है और वो भी बेसिकली ड्यूटी में जाएगा,
राइट। तो मगर फर्स्ट चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली कोई कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन और जो ट्रेनिंग होता है इंडिया में बेसिकली वो ड्यूटी में इंक्लूड होगा। चलो नेक्स्ट देखेंगे, फ़ी के ऊपर देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ़ी बेसिकली ये रिकरिंग और नॉन रिकरिंग पेमेंट, रेगुलर होता है और इरेगुलर भी होता है। रिकरिंग मीन्स रेगुलर पेमेंट और नॉन रिकरिंग इरेगुलर। तो ये रिकरिंग और नॉन रिकरिंग पेमेंट टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम ए सोर्स अदर दैन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो यहाँ पर जो पेमेंट होता है बेसिकली जो रिकरिंग पेमेंट की नॉन रिकरिंग पेमेंट होता है गवर्नमेंट सर्वेंट को, वो एक्चुअली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ए स्टेट और द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ए यूनियन टेरिटरी से नहीं होता है, अदर सोर्स से होगा। बेसिकली जो सिविलियन एम्प्लॉइज़ है वो हमको जो सैलरी मिल रहा है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिल रहा है। बेसिकली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आप देख लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 266 है वहाँ पर दिया गया है, आर्टिकल 266 जो है बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का है, उसी से सिविलियन एम्प्लॉइज़ को बेसिकली सैलरी मिल रहा है। और यहाँ पर जो फ़ी का बात जब आएगा, ऐसा कुछ हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे जिसके वजह से हमको पेमेंट मिलेगा, मगर वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और स्टेट और यूनियन टेरिटरी से नहीं होगा, अदर सोर्सेज से होगा, राइट। टेरिटरी वेदर मेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट सर्वेंट और इनडायरेक्टली थ्रू द इंटरमीडिएट ऑफ गवर्नमेंट बट डज नॉट इंक्लूड। इसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा फी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट दो चीज़ आप देख लीजिए, वो फी में इंक्लूड नहीं होगा। अनअर्नड इनकम सच एज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, डिविडेंड्स एंड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, इसमें जो इनकम अर्न हो रहा है वो एक्चुअली फ़ी में इंक्लूड नहीं होगा। हमको हमारा प्रॉपर्टी से इनकम मिल रहा है, कुछ डिविडेंड से प्रॉपर्टी बेसिकली इनकम मिल रहा है, हम कुछ कंपनी का शेयर के ऊपर पैसा इन्वेस्ट किया है और हमको डिविडेंड मिल रहा है, वो एक्चुअली फ़ी में इंक्लूड नहीं होगा। और कुछ सिक्योरिटीज से हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, वो भी फ़ी में इंक्लूड नहीं होगा, इसको हम बोलेंगे अनअर्नड इनकम, ठीक है, ये फ़ी में इंक्लूड नहीं होगा। सेकेंड चीज़ क्या है, इनकम फ्रॉम लिटरेरी, कल्चरल, आर्टिस्टिक, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एफर्ट्स एंड इनकम फ्रॉम पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एज आमेचर, इसमें जो इनकम मिलता है वो भी फी में इंक्लूड नहीं होगा। कुछ लिटरेरी एक्टिविटीज़, कुछ कल्चरल, आर्टिस्टिक, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एफर्ट से हमको कुछ पेमेंट मिल रहा है, और ऐसा कुछ आज ए स्पोर्ट्स पर्सन, सपोज आप कुछ ऐसा बेसिकली पार्टिसिपेट कर रहे हो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आमेचर, तो उसमें भी आपको जो पेमेंट मिल रहा है वो फ़ी में इंक्लूड नहीं होगा। तो ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों चीज़ आपको ठीक से याद रखना है। ओके, ये दोनों चीज़ को आपको याद रखना है, ये दोनों चीज़ एक्चुअली फ़ी में इंक्लूड नहीं होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट सर्वेंट में बी परमिटेड, इस एग्जाम्पल को देख लीजिए, गवर्नमेंट सर्वेंट में बी परमिटेड टू परफॉर्म ए स्पेसिफाइड सर्विस और सर्विसेज फॉर ए प्राइवेट पर्सन और बॉडी और फॉर ए पब्लिक बॉडी इंक्लूडिंग ए बॉडी administering a local fund provided such service can be rendered without causing detriment to his official duties and responsibilities। आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेना है, और परमिशन लेने के बाद आप कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, चाहे कोई प्राइवेट पर्सन आपको कुछ सर्विस दे रहा है, कुछ ऐसा कुछ बॉडी को आप सर्विस दे रहे हो, कुछ पब्लिक बॉडी को आप सर्विस दे रहे हो, कुछ लोकल जो फंड है बेसिकली द ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय द लोकल फंड, वहाँ पर कुछ आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, मगर गवर्नमेंट का परमिशन आप लिया है और वहाँ पर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, मगर आपका जो ओरिजिनल वर्क है उसमें कुछ हैम्परिंग नहीं हो रहा है। ओके, आप अदर जगह में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो मगर आपका ऑफिशियल वर्क हैम्पर नहीं हो रहा है, आपका जो डे टू डे ऑफिशियल वर्क है वो हैम्पर नहीं हो रहा है, उसमें कुछ हार्म नहीं हो रहा है, डेट्रीमेंटल नहीं हो रहा है। ओके, मगर गवर्नमेंट का परमिशन लेकर आप अदर जगह में आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो इस केस में जो आपको पेमेंट मिल रहा है वो फी में इंक्लूड होगा। फॉर रेंडरिंग सच सर्विस द गवर्नमेंट सर्वेंट इज परमिटेड टू रिसीव ए रेम्यूनरेशन बीइंग ए नॉन रिकरिंग और रिकरिंग, रेगुलर हो सकता है और इरेगुलर फी हो सकता है। तो इस केस में मगर गवर्नमेंट परमिशन लिया है, गवर्नमेंट से परमिशन लिया है और अदर जगह में आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, चाहे वो प्राइवेट बॉडी हो कि चाहे द ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी कंट्रोल बाय द लोकल फंड, ठीक है, ऐसा कुछ पब्लिक बॉडी हो, वहाँ पर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो आफ्टर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, मगर आपका जो ऑफिशियल एज यूजुअल ऑफिशियल वर्क वो हम पर नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर जो आपको पेमेंट मिल रहा है वो एक्चुअली फी में जाएगा। नेक्स्ट वन, द सैंक्शनिंग अथॉरिटी शैल रिकॉर्ड, यहाँ पर जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है यहाँ पर वो रिकॉर्ड करेगा। द सैंक्शनिंग अथॉरिटी शैल रिकॉर्ड इन राइटिंग रीजन्स व्हिच इन हिज ओपिनियन जस्टिफाई द ग्रांट ऑफ एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन बाय वे ऑफ फी,
वहाँ पर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो रिकॉर्ड में मेंशन कर रहा है कि आपको जो एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए, क्योंकि आप एक्स्ट्रा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और उसके वजह से आपका एज यूजुअल ऑफिशियल सर्विस कोई वहाँ पर नहीं हो रहा है और आप गवर्नमेंट से परमिशन लेके सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर बहुत इंपॉर्टेंट है जो फ़ी का मामला में, जो हमको जो फ़ी मिल रहा है वो एक्चुअली कंसोलिडेटेड फंड से नहीं मिल रहा है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और स्टेट और यूनियन टेरिटरी से नहीं मिल रहा है, अदर सोर्सेज से मिल रहा है, राइट। थोड़ा हम फॉरेन सर्विस को चलेंगे। जो रूल 9 फंडामेंटल रूल 9 अंडर सेक्शन 7 में है फॉरेन सर्विस इन विच ए गवर्नमेंट सर्वेंट रिसीव्स हिज पे with the sanction of government from any source other than the consolidated fund of India or the consolidated fund of a state or the consolidated fund of a union territory। यहाँ पर क्या है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट एक्चुअली आप गवर्नमेंट परमिशन के बाद फॉरेन सर्विस में आप जब काम कर रहे हो तो वहाँ पर एक्चुअली आपको प्रेशराइज नहीं किया जाता है। ओके, आपको पूछा जाता है कि आप जाकर फॉरेन सर्विस में काम करो, ठीक है। वहाँ पर आप गवर्नमेंट का परमिशन लेके आप फॉरेन सर्विस में काम कर रहे हो, कोई ऑटोनोमस बॉडी में और ऐसा कुछ, चाहे लोकल बॉडी चाहे ऑटोनोमस बॉडी और यानी स्टेट गवर्नमेंट। तो बेसिकली जो फॉरेन सर्विस में बेसिकली इट इज़ पार्शियली और होली कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, पार्शियली आपको याद रखना है, पार्शियली और होली कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। चाहे वो जो ऑर्गेनाइजेशन में आप जाकर काम करोगे वहाँ पर वो फुली कंट्रोल गवर्नमेंट का कंट्रोल में है और पार्शियल कंट्रोल में है, ठीक है। चाहे कोई ऑटोनोमस बॉडी, चाहे कोई लोकल बॉडी में जाकर आपका कोई स्टेट गवर्नमेंट में जाकर काम कर रहे हो, और बेसिकली दीज बॉडीज फुली कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, बट दीज ऑर्गेनाइजेशंस फुली कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट और पार्शियली कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, आपको याद रखना है। और वहाँ पर जो आपका गवर्नमेंट परमिशन के बाद आपको वहाँ पर जो सैलरी मिल रहा है वो बेसिकली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आप बेसिकली हमको सैलरी मिलता है, मगर फॉरेन सर्विस में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से सैलरी नहीं मिलेगा, वही दिया है सर्विस। तो कोई भाई हमें क्वेश्चन पूछेगा, दो चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है फॉरेन सर्विस में। फॉरेन सर्विस में क्या है, बेसिकली द एम्प्लॉई ट्रांसफर टू द ऑर्गेनाइजेशंस विच आर फुल्ली और पार्शियली कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, ट्रांसफर टू द ऑर्गेनाइजेशंस विच आर पार्शियली और फुल्ली कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है कि पूरा फुल्ली कंट्रोल में है, आप का ट्रांसफ़र होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक बॉडी में, चाहे वो फुली कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट और पार्शियली कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। और सेकंड वन, गवर्नमेंट परमिशन के बाद आपको जो सैलरी मिलता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से बेसिकली नहीं मिलेगा, अदर सोर्सेज से मिलेगा। तो वही दिया है, सर्विस इन विच गवर्नमेंट सर्वेंट रिसीव्स हिज पे विद द सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। ये देखिए क्वेश्चन इसी रिलेटेड आता है, विद द सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम एनी सोर्स अदर देन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ए स्टेट और द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन टेरिटरी। इससे सैलरी आपको नहीं मिलेगा गवर्नमेंट परमिशन के बाद, ओके, अदर सोर्सेज में आपको सैलरी मिलेगा। और यहाँ पर मैं बताया ट्रांसफर, बेसिकली द एम्प्लॉय ट्रांसफर टू द ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी विच इज पार्शियली और होली कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे दिया, देखिए, व्हेन द सर्विस ऑफ एन ऑफिशियल वर्किंग विद द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस आर बोरोड बाय द साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, then such official is said to be on foreign service and his pay and allowances etc for the period of foreign service will be paid by the SMDC। सपोज कोई ऑफिशियल वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ CBDT में काम कर रहा है, ओके, CBDT में काम कर रहा है, मगर उसका अभी ट्रांसफ़र हो गया साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, SMDC को ट्रांसफ़र हो गया, वो फॉरेन सर्विस हो गया, क्योंकि वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ CBDT में काम कर रहा था, अभी उसका ट्रांसफ़र हो गया साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, तो वो फॉरेन सर्विस हो गया। और फॉरेन सर्विस में आपको जो पे अलाउंसेस मिलेगा बेसिकली वहाँ पर बोरोइंग डिपार्टमेंट से मिलेगा। आपका एक्चुअली जो ओरिजिनल डिपार्टमेंट है वो लेंडिंग डिपार्टमेंट है, आपका ओरिजिनल डिपार्टमेंट CBDT है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। आपको बोरो करके कौन सा डिपार्टमेंट लिया ना, साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लिया, वहाँ पर उसको बोरोइंग डिपार्टमेंट कहा जाएगा। और आपको जो पे अलाउंसेस मिलेगा वो बेसिकली SMDC बोरोइंग डिपार्टमेंट से मिलेगा। मगर यहाँ पर याद रखना है कि जो सोर्स से आपको सैलरी मिलेगा बेसिकली अदर दैन द सोर्सेस फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ बेसिकली यूनियन और स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। आपको जनरली हमको सैलरी मिलता है कंसोलिडेटेड फंड से, मगर यहाँ पर फॉरेन सर्विस में एक्चुअली गवर्नमेंट परमिशन से आपको सैलरी मिलेगा, मगर कंसोलिडेटेड फंड से सैलरी नहीं मिलेगा। यहाँ पर बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक है आपका ट्रांसफ़र हो जाता है जो ऑर्गेनाइजेशन बॉडी को, विच इज़ पार्शियली और फुली कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, और बेसिकली आफ्टर गवर्नमेंट परमिशन
द कंसर्न एम्प्लॉई गेटिंग सैलरी अदर दैन द सोर्सेस ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और स्टेट और यूनियन टेरिटरी। और जो 8 है वो डिलीटेड है, बेसिकली रूल 9(8) डिलीटेड है। अभी देखेंगे ऑनोरारियम के ऊपर देखेंगे, ए रिकरिंग और नॉन रिकरिंग पेमेंट ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग पेमेंट ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट और द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ए यूनियन टेरिटरी एज रेम्यूनरेशन फॉर स्पेशल वर्क। ये स्पेशल वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पर जो स्पेशल वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अंडरलाइन कर, स्पेशल वर्क ऑफ एन ओकेजनल और इंटरमीडिएट कैरेक्टर। यहाँ पर ऑनोरारियम क्या है, एज यूजुअल वो रेगुलर पेमेंट होगा कि इरेगुलर पेमेंट हो सकता है। और यहाँ पर जो पेमेंट आपको मिलेगा वो बेसिकली ये दिया है कंसोलिडेटेड फंड से मिलेगा, चाहे वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द स्टेट और यूनियन टेरिटरी से। क्यों ये पेमेंट मिलेगा ना, बेसिकली फॉर स्पेशल वर्क। और वो स्पेशल वर्क क्या है, वो ओकेजनली हो सकता है और रेगुलर इंटरमीडिएट रेगुलरली हो सकता है। ठीक है, वो जैसा कुछ स्पेशल वर्क आप प्रोवाइड कर रहे हो वहाँ पर आपको ऑनोरारियम मिलेगा। और जो ऑनोरारियम पेमेंट आपको मिलेगा वो बेसिकली कंसोलिडेटेड फंड से मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको आता है बेसिकली स्पेशल वर्क आपको ध्यान देना है। यहाँ पर एक्चुअली बेसिकली द पेमेंट रिसीव्ड बाय द पर्सन ड्यू टू स्पेशल वर्क of an occasional or intermediate character, and in this case actually the payment is received from the consolidated fund of India or the state or from union territory। समझ में आ गया? चलो 9 में है, FR 9 में है। अभी FR 10 को ज्वाइनिंग टाइम के ऊपर देखेंगे, बहुत इजी है। द टाइम अलाउड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट इन विच टू ज्वाइन ए न्यू पोस्ट और टू ट्रैवल टू और फ्रॉम ए स्टेशन टू विच ही इज पोस्टेड। बेसिकली ज्वाइनिंग टाइम मिलता है ना, जब आपका ट्रांसफ़र हो जाता है अदर पोस्ट को, यहाँ जो आपका ओरिजिनल पोस्ट था उसमें आप रिलीव हो गए और आप जाकर अदर पोस्ट में आप ज्वाइन करोगे, वहाँ पर जो ज्वाइनिंग टाइम आपको दिया जाता है, ओके, उसको ज्वाइनिंग टाइम कहा जाता है। कि आपका एज यूजुअल ट्रांसफ़र होता है, ओके, आपको जब ट्रांसफ़र होगा आपको बेसिकली आप ट्रैवल करोगे तो उसमें आपको ज्वाइनिंग टाइम तो मिलेगा। तो बेसिकली वही है, जैसे ज्वाइनिंग टाइम है सपोज लेस दैन 1000 किलोमीटर्स आपको 10 डेज़ मिलता है। ठीक है, तो बेसिकली आप ज्वाइनिंग टाइम जो मिलता है वो टाइम को आप थोड़ा देख लीजिए, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैक्सिमम ज्वाइनिंग जो पीरियड होता है वो मैक्सिमम मिलता है 15 डेज़। ठीक है, मैक्सिमम मिलता है 15 डेज़। और आप जर्नी प्लेन में कर रहे हो तो उसमें मैक्सिमम ज्वाइनिंग टाइम 12 डेज़ मिलता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो द टाइम अलाउड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट इन विच टू जॉइन ए न्यू पोस्ट और टू ट्रैवल टू और फ्रॉम स्टेशन टू विच इज पोस्टेड। चाहे आपका कोई प्रमोशन हो गया और अदर पोस्ट में आप ज्वाइन करोगे, वहाँ पर आपको ज्वाइनिंग मिलेगा, ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। बेसिकली लेस दैन 1000 किलोमीटर्स आपको 10 डेज़ मिलेगा। ओके, और 2000 किलोमीटर्स और मोर आपको 15 डेज़ मिलेगा। मैक्सिमम ज्वाइनिंग टाइम 15 डेज़ होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन जो 11 है वो प्रिंटेड नहीं हुआ है। लीव सैलरी देखेंगे। लीव सैलरी हम जानते हैं द मंथली अमाउंट पेड बाय गवर्नमेंट टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन लीव। जब हम लीव में रहते हैं, कैजुअल लीव लेते हैं, अर्न्ड लीव लेते हैं, चाइल्ड केयर लीव, ठीक है, मैटरनिटी लीव, ये सब जो लेडी एम्प्लॉयज़ लेते हैं, ये सब जो लीव सैलरी बेसिकली हमको एज यूजुअल सैलरी मिलता है। ठीक है, वो लीव सैलरी कहा जाता है द मंथली अमाउंट पेड बाय गवर्नमेंट टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन लीव। गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन लीव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो एज यूजुअल हमारा जो राइट है, लीव का राइट है, हम लीव लेते हैं और उसमें हमको सैलरी मिलता है, वो लीव सैलरी होता है। और लियोन के ऊपर मेरा वीडियो है, आप देख लीजिए कि ये रूल है जब हम सपोज एक हायर पोस्ट में अदर डिपार्टमेंट में ज्वाइन करेंगे, तब हमारा जो पेरेंट पोस्ट है उसके ऊपर लियन क्रिएट हो जाएगा। तो 2 इयर्स के अंदर हम फिर हमारा पेरेंट पोस्ट को रिटर्न कर सकते हैं। मगर अभी जो हम न्यू पोस्ट को, जो न्यू हायर पोस्ट को हम चले गए अदर डिपार्टमेंट में, यदि जो हमारा न्यू पोस्ट है वो हमारा उसके ऊपर प्रोबेशन क्लियर हो जाएगा और वो पोस्ट हमारा परमानेंट हो जाएगा, तब हमारा पेरेंट पोस्ट के ऊपर जो लियन पीरियड था वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स ये समझा जाएगा कि आपका पेरेंट पोस्ट के ऊपर आप रेजिग्नेशन दे दिया। तो इसके ऊपर मेरा जो वीडियो है आप देख लीजिए, लियन के ऊपर डिटेल्स में बोल चुका हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लियन फंडामेंटल रूल 9(13) में है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। फंडामेंटल रूल अंडर सेक्शन 13 में लियन के ऊपर है। इसको मैं और थोड़ा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। और लियन के ऊपर आपको याद रखना है,
सपोज आपका पेरेंट 2 ईयर्स के अंदर आप आपका पेरेंट पोस्ट को रिटर्न करते हो। जब आप रिटर्न करते हो तब क्या है ना, कोई सपोज आपका पेरेंट पोस्ट के ऊपर कोई वैकेंट नहीं है, तो जो आप का जूनियर मोस्ट है उसको रिवर्ट कर दिया जाएगा, आपको वो जगह दे दिया जाएगा, क्योंकि आपका पेरेंट पोस्ट को रिटर्न हो गए 2 ईयर्स के अंदर। आप न्यू पोस्ट में ज्वाइन किए थे मगर आपको अच्छा नहीं लगा, आप 2 ईयर्स के अंदर आपका पेरेंट पोस्ट को आप आ गए, तो वहाँ पर सपोज आपका पेरेंट पोस्ट में कोई रेगुलर वैकेंसी नहीं है, तो आपका जो जूनियर मोस्ट है उसको रिवर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, उसको लोअर पोस्ट को रिवर्ट कर दिया जाएगा और आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, आपका पोस्ट आपको मिल जाएगा। तो इसके ऊपर मैं इतना डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा वीडियो देख लीजिए, मगर यहाँ पर याद रखना है फंडामेंटल रूल 913 में लियन के ऊपर है। अभी चलेंगे लोकल फंड। लोकल फंड के ऊपर रेवेन्यू कलेक्टेड बाय बॉडीज हैविंग फोर्स और लॉ कम अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। जो लोकल फंड बेसिकली जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो बेसिकली लोकल फंड में आता है, और वहाँ पर जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है वो बेसिकली गवर्नमेंट कंट्रोल में है। रेवेन्यू कलेक्टेड बाय बॉडीज हैविंग फोर्स और लॉ कम अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। तो अभी मैं एग्जांपल दिया, लोकल फंड बेसिकली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वहाँ पर जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है वो गवर्नमेंट कंट्रोल में है, ठीक है, उसको लोकल फंड कहा जाता है। और जो 15 वो डिलीटेड है फंडामेंटल रूल 915, और 16A भी थोड़ा मिलिट्री कमीशन्ड ऑफिसर, ये थोड़ा देख लेंगे। 16A मिलिट्री कमीशन्ड ऑफिसर, ए कमीशन्ड ऑफिसर अदर दैन डिपार्टमेंटल कमीशन्ड ऑफिसर, ए कमीशन्ड ऑफिसर ऑफ द इंडियन मेडिकल डिपार्टमेंट, इट डज नॉट इंक्लूड ए वारंट ऑफिसर। मिलिट्री ऑफिसर, एनी ऑफिसर फॉलिंग विद इन द डेफिनेशन ऑफ मिलिट्री कमीशन्ड ऑफिसर और इंक्लूडेड इन सब क्लॉज आई और II ऑफ क्लॉज ए अबोव और एनी वारंट ऑफिसर। इसको थोड़ा देख लीजिए, रिलेटेड टू द मिलिट्री ऑफिसर और मिलिट्री कमीशन्ड ऑफिसर के ऊपर है, आप उसको थोड़ा देख लीजिए। ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लीजिए आप। चलो मिनिस्ट्रियल सर्वेंट के ऊपर देखेंगे। मिनिस्ट्रियल सर्वेंट ए गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफ सबऑर्डिनेट सर्विस हुज ड्यूटीज आर एंटायरली क्लरिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हुज ड्यूटीज आर एंटायरली क्लरिकल and any other class of servants specially defined as such by general or special order of the central government according to Government of India orders, GOI orders. Group B employees engaged predominantly in clerical work. The post of private secretary is 2 secretaries. देखिए पोस्ट देखिए, प्राइवेट सेक्रेटरीज 2 secretaries and joint secretaries should be classified as ministerial. तो बेसिकली इसमें आप सपोज ग्रुप बी एम्प्लॉइज जो प्रिडोमिनेंटली वो क्लरिकल वर्क में इन्वॉल्व है, और वो प्राइवेट सेक्रेटरी किसका होते हैं ना, सेक्रेटरीज का प्राइवेट सेक्रेटरी होते हैं कि जॉइंट सेक्रेटरीज का प्राइवेट सेक्रेटरी होते हैं, ये सब मिनिस्ट्रियल सर्वेंट होते हैं। तो इनको बेसिकली वो क्लरिकल वर्क उनको मिलता है, उनको हम मिनिस्ट्रियल सर्वेंट बोलेंगे, ओके, जिनका प्रिडोमिनेंट जो वर्क है वो क्लरिकल वर्क है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी वो फंडामेंटल रूल 917 में है। अभी मंथ देखेंगे, इसके ऊपर एक एग्जाम्पल है, ए कैलेंडर मंथ इन कैलकुलेटिंग ए पीरियड expressed in terms of months and days, complete calendar months irrespective of the even number of days in each should first be calculated and the odd number of days calculated subsequently। अब देख लीजिए वैसे कैसे कैलकुलेट होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल में दे दिया, द पीरियड कमेंसिंग ऑन 30th जनवरी एंड एंडिंग विथ 2 मार्च। 30th जनवरी में स्टार्ट होगा, एंड होगा 2 मार्च। हम कैसे ये जो इसको कैलकुलेट करेंगे, वो बेसिकली यहाँ पर 1 month 4 days हो गया, तो 30th जनवरी टू 31st जनवरी 2 days हो गया। फरवरी सपोज 1 month हो गया। 1st मार्च टू 2nd मार्च ये 2 days हो गया। तो टोटल कैसे कैलकुलेट होता है, 1 month 4 days हो गया। तो आपको ईयर मंथ डेज ऐसे करके आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, राइट, ऐसे कैलकुलेट होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। ऑफिशिएट देखेंगे। ऑफिशिएट ए गवर्नमेंट सर्वेंट परफॉर्म्स ड्यूटी व्हेन अनदर पर्सन होल्ड्स ए लियन। सपोज एक एम्प्लॉय ने वो लियन में हायर पोस्ट में गया है, तो उसका तो पेरेंट पोस्ट वैकेंट रहेगा, क्योंकि पेरेंट पोस्ट के ऊपर लियन क्रिएट होगा। सपोज अभी मैं अदर डिपार्टमेंट में चला गया, एक हायर पोस्ट में अदर डिपार्टमेंट में चला गया, तो मेरा पेरेंट पोस्ट के ऊपर लियन क्रिएट हो गया। मैं 2 years के अंदर रिटर्न कर सकता हूँ मेरा पेरेंट पोस्ट को, मगर अभी तो वो वैकेंट है ना, क्योंकि मैं हायर पोस्ट में चला गया, ठीक है, मगर मेरा पेरेंट पोस्ट वैकेंट रहेगा क्योंकि 2 years के अंदर मैं रिटर्न कर सकता हूँ। तो उसमें सपोज कोई एम्प्लॉय को ऑफिशिएट किया जाता है, ओके, जिस पोस्ट के ऊपर ऑलरेडी लियन क्रिएट हो चुका है और वो ऑफिशियल अभी हायर पोस्ट में काम कर रहा है, तो वो पोस्ट अभी जो वैकेंट है वो किसको ऑफिशिएट किया जा सकता है। तो ऑफिशिएट वही है, कोई एम्प्लॉय को जब एक पोस्ट में ऑफिशिएट किया जाता है
तो वही आता है गवर्नमेंट सर्वेंट परफॉर्म्स ड्यूटी व्हेन अनदर पर्सन होल्ड्स ए लियन। अभी मैं उसको क्लैरिफाई किया किसे ऑफिशिएट होता है। तो यहाँ पर जो कोई भाई बा में आपको पूछ सकते हैं कि ऑफिशिएट किसको बोलेंगे। यदि कोई एम्प्लॉई वो हायर पोस्ट में लियन लेकर चला गया तो अभी वो उसका पेरेंट पोस्ट के ऊपर लियन क्रिएट है, वो 2 ईयर्स के अंदर वो रिटर्न कर सकता है। मगर अभी तो पोस्ट वैकेंट है ना, उसमें कोई एम्प्लॉई को ऑफिशिएट कर दिया गया तो उसको हम बोलेंगे ऑफिशिएट। ओवरसीज पे ग्रांटेड, ये डेफिनेशन को याद रखना है। पे ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट इन कंसिडरेशन ऑफ द फैक्ट दैट ही इज सर्विंग इन ए कंट्री अदर देन द कंट्री, ही इज सर्विंग इन ए कंट्री अदर देन द कंट्री ऑफ हिज डोमिसाइल। ये है, यदि आपका जो डोमिसाइल कंट्री है उसके अलावा जाकर अदर कंट्री में आप काम कर रहे हो, वहाँ पर जो पेमेंट मिल रहा है उसको ओवरसीज पे बोलेंगे। ये जो सेंटेंस को अंडरलाइन किया इसको याद रखना है। ही इज सर्विंग इन ए कंट्री अदर देन द कंट्री ऑफ हिज डोमिसाइल। तो आपका बेसिकली जो डोमिसाइल कंट्री है, जो जिस कंट्री का आप बेसिकली नेचुरल सिटीजनशिप आपको मिला है, ये छोड़ के यदि आप और कोई कंट्री में आप काम कर रहे हो और वहाँ पर आपको पे मिल रहा है उसको ओवरसीज पे बोलेंगे। अभी पे के ऊपर आएंगे। फंडामेंटल रूल 921, पे में द बेसिक पे ड्रॉन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट एवरी मंथ, जो हमको बेसिक पे मिल रहा है। ओवरसीज पे, स्पेशल पे, पर्सनल पे, ये सब हो जाता है पे में। एनी अदर एमोलूमेंट्स विच में भी स्पेशली क्लास डज पे बाय द प्रेसिडेंट, ये तीनों चीज़ अभी मैं बताऊंगा। ओवरसीज पे तो हम डिस्कस कर चुके हैं, स्पेशल पे, पर्सनल पे के ऊपर हम जाएंगे अभी। तो ये 3 चीज़ को याद रखना है पे में। एक बेसिक पे आता है और ओवरसीज पे, स्पेशल पे एंड पर्सनल पे, और एनी अदर एमोलूमेंट्स जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट सपोज वो बेसिकली उनका ऑर्डर से कोई स्पेशल एमोलूमेंट्स मिलता है वो भी पे में आता है। एनी अदर एमोलूमेंट्स विच में भी स्पेशली क्लास डज पे बाय द प्रेसिडेंट, ये तीनों चीज़ याद रखना है। चलो नेक्स्ट, एक परमानेंट पोस्ट, इसका डेफिनेशन आ सकता है। पोस्ट कैरिंग ए डेफिनाइट, इसको याद रखना है। ये पोस्ट कैरिंग ए डेफिनाइट रेट ऑफ पे, एक डेफिनाइट रेट ऑफ पे मिलता है विदाउट लिमिट ऑफ टाइम, कोई ऐसा लिमिट नहीं है, विदाउट लिमिट ऑफ टाइम, ठीक है, विदाउट लिमिट ऑफ टाइम, ये परमानेंट पोस्ट है। ये पोस्ट कैरिंग ए डेफिनाइट रेट ऑफ पे, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनाइट रेट ऑफ पे सैंक्शनड विदाउट लिमिट ऑफ टाइम, ऐसा स्पेसिफिक लिमिट नहीं इतना पीरियड के लिए आप काम करोगे, वो नहीं है, विदाउट लिमिट ऑफ टाइम। पर्सनल पे में क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पर्सनल पे के ऊपर, क्योंकि अभी पे में वो इंक्लूड होता है एडिशनल पे ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट टू सेव हिम फ्रॉम ए लॉस ऑफ सब्सटेंटिव पे इन रेस्पेक्ट ऑफ ए परमानेंट पोस्ट अदर दैन ए टेन्योर पोस्ट ड्यू टू ए रिविजन ऑफ पे और टू एनी रिडक्शन ऑफ सच सब्सटेंटिव पे और अदरवाइज दैन एज ए डिसिप्लिनरी मेजर इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस ऑन अदर पर्सनल कंसिडरेशंस। उसको थोड़ा मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ पर्सनल पे के ऊपर। ये ओनली परमानेंट पोस्ट के ऊपर है, टेन्योर पोस्ट के ऊपर नहीं है। टेन्योर पोस्ट हम आगे में डिस्कस करेंगे। तो पर्सनल पे क्या होता है, जब पे रिवीजन होता है, पे रिवीजन में हमारा जो सब्सटेंटिव पे है, जो एक्चुअल पे है वो रिड्यूस हो जाता है। जब पे रिवीजन होता है वहाँ पर हमारा जो एक्चुअल पे है, जो सब्सटेंटिव पे है वो रिड्यूस हो जाता है। तो उसको कवर अप करने के लिए एक एडिशनल पे मिलता है, उसको हम पर्सनल पे बोलते हैं। राइट, समझ में आया। और ये परमानेंट पोस्ट के ऊपर होता है, टेन्योर पोस्ट के ऊपर नहीं। इसको आपको इस तरीके का क्वेश्चन आता है, जो पर्सनल पे, जो एडिशनल पे हमको मिलता है वो बेसिकली परमानेंट पोस्ट के ऊपर मिलेगा। और कब मिलेगा ना, जब हमारा पे रिवीजन हुआ परमानेंट पोस्ट के ऊपर और पे रिवीजन में हमारा पे कम हो गया, तो उसको कवर अप, उस लॉस को कवर अप करने के लिए एक एडिशनल पे मिलता है, उसको हम पर्सनल पे बोलेंगे। और कुछ ऐसा स्पेशल सर्कमस्टांसेस में और अदर पर्सनल कंसिडरेशंस में कुछ एडिशनल पे मिलता है। तो 2 चीज़ आपको याद रखना है। समझ में आया पर्सनल पे। चलो नेक्स्ट वन चलेंगे, ये 923 फंडामेंटल रूल 923 याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है पर्सनल पे। अभी आएंगे प्रेजम्पटिव पे ऑफ ए पोस्ट। ये जो प्रेजम्पटिव पे होता है, इसमें एक्चुअली आपको याद रखना है, इसमें कोई पर्सनल पे कि स्पेशल पे इसमें इंक्लूड नहीं होगा। जो एक्चुअल जो पोस्ट है आपका, जो एक्चुअल पे है वही मिलेगा। इसमें कुछ स्पेशल पे हम इंक्लूड नहीं करेंगे कि कोई पर्सनल पे हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो वही दिया है, व्हेन यूज्ड विथ रेफरेंस टू एनी पर्टिकुलर गवर्नमेंट सर्वेंट द पे to which he would be entitled if he held the post substantively and we are performing its duties, but it does not include special pay unless the government servant performs or discharges the work or responsibility in consideration of which the special pay was sanctioned। तो यहाँ पर जो है थोड़ा प्रेजेंटिव पे ऑफ ए पोस्ट के ऊपर बता रहा हूँ। जब हम कुछ स्पेशल काम करेंगे, स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको दिया जाएगा,
तब हमको एक एडिशनल पे मिलता है, उसको हम स्पेशल पे बोलते हैं। आगे में हम डिस्कस करेंगे स्पेशल पे के ऊपर। स्पेशल पे के ऊपर मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूँ कब स्पेशल पे मिलता है ना, जब कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक कॉन्सर्न एम्प्लॉय को दिया जाता है, वो कुछ एडिशनल वर्क करता है, कुछ आर्डुअस वर्क, कुछ डिफिकल्ट वर्क करता है, तब उसको स्पेशल पे मिलता है। मगर यहाँ पर क्या है, जब काम करोगे ऐसा कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगा, जब कुछ ऐसा आर्डुअस वर्क आप कर रहे हो, ऐसा कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम कर रहे हो, तब आपको स्पेशल पे मिल रहा है। मगर उसके बिना तो स्पेशल पे नहीं मिलेगा। वही है प्रेजेंटिव पे। प्रेजेंटिव पे मीन्स एक पर्टिकुलर पोस्ट में हो, आपका जो पे फिक्स हुआ है पे मिलेगा, मगर आप बिना एक्चुअली कोई हार्ड वर्क की, कोई बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको स्पेशल पे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वही है प्रेजेंटिव पे पे पोस्ट। एज यूजुअल आपको पे मिलेगा आपका पोस्ट के हिसाब से, मगर आप ऐसा कुछ स्पेशल वर्क नहीं किया, आप कुछ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम नहीं किया, तो आपको स्पेशल पे नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे, स्पेशल पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं बताया। स्पेशल पे जो होता है दो चीज़ में मिलता है, कुछ हमको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है, और ऐसा कुछ वर्क जो है बहुत आर्डुअस, बहुत डिफिकल्ट, बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्क हमको मिलता है, तो उसके लिए हमको एक स्पेशल पे मिलता है। ठीक है, यहाँ पर दे दिया फर्स्ट वन, देख लीजिए, स्पेशली आर्डुअस नेचर ऑफ द ड्यूटीज। ड्यूटीज डिफिकल्ट होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ड्यूटी होता है, इसी के वजह से हमको स्पेशल पे मिलता है। सेकेंड वन, कुछ स्पेशल एडिशन, आपका एज यूजुअल आपका जो नॉर्मल वर्क है आप कर रहे हो, मगर कुछ आपको एडिशनल वर्क दे दिया गया, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया गया, तो एडिशनल वर्क और एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया गया मीन्स आपको एक एडिशनल पे मिलेगा, वही है स्पेशल पे। तो दो चीज़ आपको याद रखना है स्पेशल पे में, एक है एक आर्डुअस नेचर ऑफ द ड्यूटीज होता है, और एक है स्पेशल एडिशन टू द वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये दोनों चीज़ में हमको स्पेशल पे मिलता है। ठीक है, ये स्पेशल पे के ऊपर है, फंडामेंटल रूल 925 में है, और जो 26 है वो डिलीट हुआ है। और देखेंगे सब्सिस्टेंस ग्रांट, ए मंथली ग्रांट मेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज नॉट इन रिसिप्ट ऑफ पे और लीव सैलरी। बेसिकली वो ग्रांट मिलता है, एक ग्रांट है, तो हमको वहाँ पर क्या है, जो पे हमको मिलता है, बेसिकली हमारा जो बेसिक पे है कि मंथली मिलता है, कि लीव सैलरी, जब लीव में होते हैं हमको लीव सैलरी मिलता है, ये सब नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक मंथली ग्रांट मिलता है। ओके, मंथली ग्रांट मेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट, जिनको जो बेसिक पे के हिसाब से सैलरी नहीं मिल रहा है, कि वो कोई लीव सैलरी नहीं मिल रहा है, उनको एक मंथली ग्रांट मिलता है, उसको सब्सिस्टेंस ग्रांट बोलेंगे। और सब्सटेंटिव पे क्या है, सब्सटेंटिव पे आपका पोस्ट में जो एक्चुअल पे होता है, आपका बेसिकली जो बेसिक पे है, ठीक है, बेसिक पे है, उसके हिसाब से आपका बेसिक पे फिक्स हुआ है, उसके ऊपर डीए। ओके, सपोज आपको कोई ट्रैवलिंग अलाउंस है, टीए के ऊपर डीए, ये सब जो है आपको मिलता है, वही सब्सटेंटिव पे है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ये है फंडामेंटल रूल 921A ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल 921A। ओके, रूल 921A, वहाँ पर एक्चुअली सब्सटेंटिव पे जो एक्चुअल पे के ऊपर बोला गया है, और III ये भी याद रखना है, III। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, द पे अदर देन स्पेशल पे, यहाँ पर हम स्पेशल पे, पर्सनल पे और एमोल्यूमेंट्स नहीं लेंगे। द पे अदर देन स्पेशल पे, पर्सनल पे, एमोल्यूमेंट्स क्लास आज पे बाय द प्रेसिडेंट अंडर रूल 921A। तो अभी जो पे के ऊपर ये आता है रूल 9, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं पे के ऊपर। पे में क्या क्या इंक्लूड होता है, स्पेशल पे इंक्लूड होता है, पर्सनल पे इंक्लूड होगा, और बाय स्पेशल ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट एक एमोल्यूमेंट्स हमको मिलता है, स्पेशल ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट। ओके, स्पेशल पे कब मिलता है आप जानते हो, पर्सनल पे कब मिलता है, कि एडिशनल पे आप जानते हो, और कोई स्पेशल ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट से हमको कुछ एडिशनल एमोल्यूमेंट्स मिल रहा है, वो सब पे में आता है। वो कहाँ पर मेंशन है, रूल 921A। ऑलरेडी हम फंडामेंटल रूल 921 में पे के ऊपर हम पढ़ चुके हैं, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। रूल 921 में जो पे है एक्चुअली बेसिक पे, वहाँ पर कुछ स्पेशल पे, पर्सनल पे, ओवरसीज पे, और एनी स्पेशल एमोल्यूमेंट अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ द स्पेशल ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट, वहाँ पर पे में इंक्लूड हो गया। तो इसके अलावा इसको छोड़ दो, इसके अलावा जो हमारा पोस्ट है, उसी पोस्ट के ऊपर जो हमारा बेसिक पे फिक्स हुआ है, जो मिलता है, वही है सब्सटेंटिव पे, जो एक्चुअल पे है। स्पेशल पे आप जानते हो, स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ स्पेशल वर्क, कुछ ऐसा आर्डुअस वर्क, कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्क आप कर रहे हो, इसमें कुछ स्पेशल पे आपको मिलता है। पर्सनल पे आपका पे रिवीजन हुआ परमानेंट पोस्ट के ऊपर, और उसमें क्या हुआ ना, सपोज आपका पे रिवीजन में आपका पे कम हो गया, तो उसको, उस लॉस को कवर अप करने के लिए आपको एक एडिशनल पे मिलता है, वो पर्सनल पे है।
ओवरसीज़ पे आप हमारा कंट्री का डोमिसाइल नहीं हो, अदर कंट्री में जाकर आप काम कर रहे हो, वहाँ पर पे जो मिल रहा है वो ओवरसीज़ पे है। इसके अलावा जो पर्टिकुलर पोस्ट में हमारा जो बेसिक पे फिक्स हुआ है उसके हिसाब से जो हमको पे मिल रहा है वो सब्सटेंटिव पे है। और जैसे आप अभी फॉरेन सर्विस में चले गए, ओके, कोई लोकल बॉडी को, कोई ऑटोनोमस बॉडी को, स्टेट गवर्नमेंट को, वहाँ पर जो पे फिक्स होता है आपका पोस्ट के हिसाब से जो पे फिक्स होगा वही है सब्सटेंटिव पे। ओके, इन द केस ऑफ ए पर्सन विथ ए लियन ऑन ए परमानेंट पोस्ट अंडर स्टेट गवर्नमेंट, सब्सटेंटिव पे मीन्स द सब्सटेंटिव पे आज डिफाइंड इन द रिलेवेंट रूल्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न। आप अभी लियन लेकर आप स्टेट गवर्नमेंट में चले गए, अभी आप सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे थे, आपको अभी स्टेट गवर्नमेंट में हायर पोस्ट में सपोज आप चले गए, तो आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो पेरेंट पोस्ट था उसके ऊपर लियन है, क्योंकि 2 ईयर्स के अंदर आप रिटर्न कर सकते हो। और आप जो अभी चले गए हायर पोस्ट में स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, वहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट का जो रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से जो पे फिक्स होगा वही है सब्सटेंटिव पे। चलो ठीक है। 29 जो है फंडामेंटल रूल 929 वो डिलीटेड है। और टेम्पररी पोस्ट, ए पोस्ट कैरिंग ए डेफिनाइट रेट ऑफ पे सैंक्शन फॉर ए लिमिटेड टाइम। सही, कैरिंग ए डेफिनाइट रेट ऑफ पे बट लिमिटेड टाइम के लिए टेम्पररी पोस्ट। विदाउट ए टाइम लिमिट वो परमानेंट है, विदाउट टाइम लिमिट परमानेंट है, लिमिटेड टाइम टेम्पररी है। टेन्योर पोस्ट वही है, आप एक पोस्ट को कैरी करते हो लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, जैसे सीबीआई डायरेक्टर की, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन चेयरमैन की, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी, ये सब है टेन्योर पोस्ट, क्योंकि लिमिटेड टाइम के लिए आप वो पोस्ट को कैरी करते हो, उसके बाद आपका रिवर्ट हो जाता है, आपका पेरेंट डिपार्टमेंट को आप रिवर्ट कर जाते हो। तो अभी एग्जाम्पल दिया, कभी आपको अपॉइंट किया गया सीबीआई डायरेक्टर, या आपको अपॉइंटमेंट किया गया यूपीएससी चेयरमैन, अपॉइंटमेंट किया गया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो इस केस में जैसे नीति आयोग का वाइस चेयरमैन, तो ये जो पोस्ट होता है वो टेन्योर पोस्ट लिमिटेड टाइम के लिए होता है, आप पोस्ट को कैरी करते हो, ठीक है। ये तो वो भी परमानेंट पोस्ट है, ये इसको याद रखना है। टेन्योर पोस्ट है परमानेंट पोस्ट विच एन इंडिविजुअल गवर्नमेंट सर्वेंट मे नॉट होल्ड फॉर मोर देन ए लिमिटेड पीरियड के लिए आप जाओगे वो पोस्ट में, और फिर आपका रिवर्ट हो जाएगा आपका पेरेंट पोस्ट में। टाइम स्केल ऑफ पे राइजेस बाय पीरियडिकल इंक्रीमेंट्स फ्रॉम ए मिनिमम टू मैक्सिमम। सपोज आपका पे बैंड है, ये एक एग्जांपल दे दिया 15,600 टू 39,100, ग्रेड पे 7,600, तो आपको मिनिमम पे जो फिक्स होगा, मिनिमम पे 78,800 होगा, मैक्सिमम इतना तक, मिनिमम इतना होगा और इंक्रीमेंट मिलता जाएगा एवरी ईयर। आप जानते हो इंक्रीमेंट 2 बार, इधर जनवरी में फिक्स होगा कि जुलाई, जनवरी 1 और जुलाई 1, नहीं कि, तो आपका मिनिमम पे इसी पे बैंड में इतना मिलेगा और इंक्रीमेंट वैसा बढ़ता जाएगा आपका टाइम स्केल पे, और मैक्सिमम इतना आ जाएगा 2 लाख, ओके, 9,200, ठीक है। टाइम स्केल पे के ऊपर क्लियर हुआ, ये चीज़ को आपको याद रखना है। नेक्स्ट आएगा जो लास्ट है रूल 32, फंडामेंटल रूल 932, बेसिकली टीए के ऊपर है, ट्रैवलिंग अलाउंस के ऊपर है। An allowance granted to a government servant to cover the expenses which he incurs in travelling in the interest of a public service. The expenses which he incurs in travelling in the interest of a public service. It includes allowances granted for the maintenance of conveyances, horses and tents. ये सब include होता है travelling allowance में। कोई public work में, ओके, जब कोई पब्लिक ड्यूटी में हम ट्रैवल करते हैं और उसमें जो खर्च होता है उसको हम ट्रैवलिंग अलाउंस बोलते हैं। उसमें चाहे आपका कन्वेंस हो कि कोई टेंट फेंट मटेरियल आप लेकर जा रहे हो, उसमें जो आपको अलाउंस मिलता है वो ट्रैवलिंग अलाउंस में इंक्लूड होता है। बेसिकली जर्नी टाइम में आप ट्रैवल करते हो पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, वो टीए कहा जाता है, ट्रैवलिंग अलाउंस। वो बेसिकली फंडामेंटल रूल 932 में है। ये कंप्लीट है। अभी कुछ चलेंगे MCQ के ऊपर। 18 MCQs है इसी रिलेटेड में जो हम डिस्कस किया फंडामेंटल रूल 1 to 9। तो क्वेश्चन नंबर 1, द फंडामेंटल रूल्स केम इन टू फोर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं जो फंडामेंटल रूल जो इफेक्ट हुआ वो 1/1/1922। तो अभी आपका आंसर मिल गया। तो आंसर ये गलत हो गया, द फंडा केम इन टू फोर्स 1923 सब हो गया। एक्चुअली यहाँ पर एक्चुअली 1/1/1922 थोड़ा उसको ठीक कर दीजिए। सपोज इसको कर दीजिए 1924, 23 की जगह कि सेकेंड वन कर दीजिए 1922, थर्ड वन कर दीजिए 1922 कर दीजिए 1921, थर्ड वन 1922, अरे 1925 फोर्थ ऑप्शन है। फर्स्ट वन 1/1/1924, सेकेंड वन 1/1/1922, राइट। और नेक्स्ट वन 1921, ये
देखिए फर्स्ट वन यहाँ पर और एक बार देख लीजिए, जो 1923 इसको रेक्टिफाई कर दीजिए, इसको कर दीजिए 1924 कर दीजिए। सेकेंड वन को 1922 कर दीजिए, ये 1921 हो गया, और लास्ट वन को 1920 कर दीजिए। इसमें हम जानते हैं जो फंडामेंटल रूल इफेक्ट हुआ 1/1/1922, इसको याद कीजिए, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, राइट। तो आंसर 1/1/1922 आंसर बीट बी है, क्योंकि मैं 1923 की जगह 1922 कर दिया, 1/1/1922। चलो क्वेश्चन नंबर 2, ड्यूटी इंक्लूड्स द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग, सर्विस नॉट वेरीफाइड, अनऑथराइज लीव और ब्रेक इन सर्विस। तो बेसिकली यहाँ पर ड्यूटी इंक्लूड्स होता है बेसिकली ट्रेनिंग पीरियड। ओके, जो आंसर बेसिकली बीट ए है यहाँ पर। ब्रेक इन सर्विस में नहीं होगा, अनऑथराइज लीव उसको ड्यूटी नहीं माना जाएगा। सर्विस नॉट वेरीफाइड, जो सर्विस वेरीफाइड हुआ है उसको, सर्विस वेरीफाइड नहीं हुआ है उसको भी हम ड्यूटी नहीं मानेंगे, और ट्रेनिंग पीरियड को हम ड्यूटी मानेंगे। हम ट्रेनिंग में जो जाते हैं वो ड्यूटी में इंक्लूड होता है। तो आंसर इज बिट ए, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ड्यूटी डज नॉट इंक्लूड द पीरियड ऑफ। आप देख लीजिए इसमें ड्यूटी डज नॉट इंक्लूड जॉइनिंग टाइम, प्रोबेशन, ट्रेनिंग, ये सब ड्यूटी पीरियड में इंक्लूड होगा। ओनली लीव जो है वो ड्यूटी में इंक्लूड नहीं होगा। तो आंसर इज बिट ए। जॉइनिंग टाइम जो मिलता है, ट्रांसफ़र जब होता है जॉइनिंग टाइम मिलता है, वो ड्यूटी में इंक्लूड होगा। प्रोबेशन पीरियड ड्यूटी में इंक्लूड होगा, और ट्रेनिंग ड्यूटी में इंक्लूड होगा, मगर लीव ड्यूटी में इंक्लूड नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4, परमानेंट पोस्ट के ऊपर मैं अभी बताया था, मीन्स कैरिंग ए डेफिनाइट रेट ऑफ पे, सैंक्शनड विदाउट लिमिट ऑफ टाइम। डेफिनाइट रेट ऑफ पे, ए डेफिनाइट रेट ऑफ पे, आंसर इज बिट सी। परमानेंट पोस्ट मीन्स ए पोस्ट कैरिंग ए डेफिनाइट रेट ऑफ पे, ओके, सैंक्शनड विदाउट लिमिट ऑफ टाइम। लिमिटेड टाइम हो गया तो वो टेम्पररी हो जाएगा। चलो आंसर इज बिट सी। क्वेश्चन नंबर 5, ए पोस्ट कैरिंग ए डेफिनाइट रेट ऑफ पे सैंक्शनड फॉर ए लिमिटेड टाइम। माने यहाँ पर देखिए डेफिनाइट रेट ऑफ पे, लिमिटेड टाइम मीन्स वो टेम्पररी पोस्ट है। आंसर इज बिट बी। डेफिनाइट रेट ऑफ पे विदाउट टाइम लिमिट परमानेंट है। डेफिनाइट रेट ऑफ पे लिमिटेड टाइम मीन्स वो टेम्पररी पोस्ट है। आंसर इज बिट बी, टेम्पररी पोस्ट। क्वेश्चन नंबर 6, अभी टेन्योर पोस्ट के ऊपर बताया था मैं। टेन्योर पोस्ट क्या है? जो पोस्ट को होल्ड किया जाता है लिमिटेड पीरियड के लिए। ओके, द पर्टिकुलर एम्प्लॉई कैरी द पोस्ट फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। ओके, होल्ड द पोस्ट फॉर लिमिटेड पीरियड। और मैं बताया था सीबीआई डायरेक्टर, यूपीएससी चेयरमैन, नीति आयोग वाइस चेयरमैन, ये सब बताया था। ये सब टेन्योर पोस्ट होता है, लिमिटेड पीरियड के लिए ओके पोस्ट को कैरी किया जाता है। एक्स कैडर पोस्ट, एडहॉक पोस्ट परमानेंट पोस्ट है। टेन्योर पोस्ट परमानेंट है, मगर परमानेंट है, मगर क्या है, कॉन्सर्न एम्प्लॉय को जो पोस्ट को कैरी करना है लिमिटेड पीरियड के लिए। ओके, आंसर इज बिट सी। क्वेश्चन नंबर 7, ए पोस्ट व्हिच एन इंडिविजुअल गवर्नमेंट सर्वेंट मे नॉट होल्ड फॉर मोर देन ए लिमिटेड पीरियड। वही बताया, ये टेन्योर पोस्ट है। टेन्योर पोस्ट क्योंकि एक पोस्ट को कैरी किया जाएगा, होल्ड किया जाएगा लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम टेन्योर पोस्ट बोलेंगे। ओके, आंसर इज बिट बी। क्वेश्चन नंबर 8, टेम्पररी पोस्ट। टेम्पररी पोस्ट में बताया था, टेम्पररी पोस्ट क्या है? कैरिंग ए डेफिनाइट रेट ऑफ पे फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। डेफिनाइट रेट ऑफ पे, लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम हो गया, लिमिटेड टाइम। ये आंसर बिट सी है। डेफिनाइट रेट ऑफ पे सैंक्शन फॉर ए लिमिटेड टाइम। जैसे डेफिनाइट रेट ऑफ पे सैंक्शन फॉर डेफिनाइट रेट ऑफ पे सैंक्शन विदाउट ए टाइम लिमिट, वो परमानेंट है, मगर सैंक्शन फॉर ए लिमिटेड टाइम वो टेम्पररी पोस्ट। आंसर इज बिट सी। क्वेश्चन नंबर 9, एन एम्प्लॉई होल्ड्स ए लियन ऑन ए पोस्ट। जो लियन पोस्ट होता है बेसिकली while on foreign service, during joining time on transfer to another post, while under suspension, all of the above। सभी केस में लियन रहेगा पोस्ट के ऊपर। सस्पेंशन हो गया, सस्पेंशन होने के बाद यदि आप रीइंस्टेट, वही पोस्ट में आपका रीइंस्टेट होता है, तो इट मीन्स आपका पोस्ट के ऊपर लियन है। आप लीव में हो, आपका लीव पीरियड खत्म होने के बाद वही पोस्ट में आप ज्वाइन करते हो, तो इट मीन्स लीव पीरियड में आपका पोस्ट के ऊपर इट मीन्स लियन था। तो ज्वाइनिंग टाइम, आप जो ज्वाइनिंग टाइम एक पोस्ट ट्रांसफ़र होता है, एक पोस्ट से आप और एक पोस्ट को जाते हो ट्रांसफ़र टाइम में, वहाँ पर वो भी क्या है, वहाँ पर भी लियन रहेगा। और फॉरेन सर्विस में आप जाते हो, आपका पेरेंट पोस्ट के ऊपर लियन रहेगा। ठीक है, तो ये सब भी ऑल ऑफ द अबव होगा। तो मेरा जो लियन के ऊपर जो वीडियो आप देख लीजिए, आपको क्लियर मैसेज मिल जाएगा। आंसर इज बिट डी। क्वेश्चन नंबर 10, ए गवर्नमेंट सर्वेंट
कैन होल्ड लियन ऑन द पोस्ट इन हिज पेरेंट डिपार्टमेंट वाइल गेटिंग एम्प्लॉयड इन अनदर डिपार्टमेंट फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years। बेसिकली हम जब एक हायर पोस्ट हम मिलता है, जब हम न्यू पोस्ट को जाते हैं तो हमारा परमानेंट पोस्ट के ऊपर लियन क्रिएट हो जाएगा। हम 2 years के अंदर, जो प्रोबेशन पीरियड के अंदर हमको अच्छा नहीं लगेगा न्यू पोस्ट में, हम रिटर्न कर सकते हैं, रिवर्ट कर सकते हैं। तो मगर जनरली 2 years रहेगा। यदि आपका न्यू पोस्ट में प्रोबेशन एक्सटेंशन हो जाएगा 1 year, 2 years में प्रोबेशन क्लियर नहीं हुआ, 1 year एक्सटेंशन हो गया, तब आपका पेरेंट डिपार्टमेंट को भी इन्फॉर्म करना है कि मेरा न्यू पोस्ट में मेरा प्रोबेशन पीरियड 1 year एक्सटेंड हो गया, तो वहाँ पर मेरा लियन पीरियड को भी 1 year एक्सटेंड कर दिया जाए। इसके लिए कि आपको न्यू अंडरटेकिंग आपका पेरेंट डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा। जनरली वहाँ यहाँ पर 2 years है और एक्सेप्शनल केसेस में वो 3 years होता है। आंसर इज बिट बी। क्वेश्चन नंबर 11, लियन ऑफ ए पोस्ट शैल स्टैंड टर्मिनेटेड इफ द एम्प्लॉय overstays at foreign service or deputation beyond the maximum permissible period, acquires lien on a permanent post outside his parent cadre, proceeds on immediate absorption basis to a post or service outside his service or cadre or post, all of the above। आंसर इज all of the above। आप फॉरेन सर्विस आप लिमिटेड पीरियड के लिए जाते हो, डेपुटेशन फॉरेन सर्विस जैसे 5 years 7 years के लिए, उसका बियॉन्ड हो जाएगा। आप आपका पेरेंट पोस्ट को रिवर्ट नहीं किए, जितना दिन परमिशन दिया था, सपोज गवर्नमेंट आपको 5 years परमिशन दिया था फॉरेन सर्विस में कि डेपुटेशन में, आप 5 years के बाद भी आप वहाँ पर कंटिन्यू किया, आपका पेरेंट पोस्ट को आप रिटर्न नहीं किए, तो वहाँ पर आपका लियन खत्म हो जाएगा, पेरेंट पोस्ट के ऊपर लियन खत्म हो जाएगा। जैसे आप कोई आउटसाइड पेरेंट कैडर से चले गए, आप अदर डिपार्टमेंट में चले गए और वहाँ पर आपका पोस्ट परमानेंट हो गया, प्रोबेशन आपका कंप्लीट हो गया न्यू पोस्ट में, तो ऑटोमेटिकली आपका जो परमानेंट जो आपका पेरेंट डिपार्टमेंट का पोस्ट जिसके ऊपर लियन था वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। इट मीन्स मान लिया जाएगा कि आपका पेरेंट पोस्ट के ऊपर आप रेजिग्नेशन दे दिया, क्योंकि आपका न्यू पोस्ट में आपका परमानेंट हो गया। जब तक आपका न्यू पोस्ट में परमानेंट नहीं हुआ है तब तक आपका जो पेरेंट पोस्ट है उसके ऊपर लियन बना रहेगा और आपका इमीडिएट ऑब्जर्वेशन हो जाता है टू ए पोस्ट और सर्विस आउटसाइड इज सर्विस और कैडर और पोस्ट, ऑटोमेटिकली आपका लियन टर्मिनेट हो जाता है। तो सभी केस में आएगा। आंसर इज बिट डी। क्वेश्चन नंबर 12 चलेंगे। पे के ऊपर मैं बताया था, पे में पर्सनल पे, स्पेशल पे, अभी मैं डिस्कस किया पर्सनल पे, स्पेशल पे, ओवरसीज पे और कुछ बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट कुछ एडिशनल एमोलुमेंट्स मिलता है, वो सब पे में इंक्लूड होता है। वो बेसिकली FR 921A और III आपको याद रखना है, पे के ऊपर डिस्कस किया गया है। तो आंसर इज बिट सी, 921A, राइट। आंसर इज बिट सी। क्वेश्चन 13, ओवरसीज पे में बताया था कि पे ग्रांटेड, देखिए आंसर बिट सी देखिए, पे ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर हिज सर्विस इन ए कंट्री अदर देन द कंट्री ऑफ हिज डोमिसाइल। उसका जो नेचुरल सिटीजनशिप आप जहाँ पर मिला है जिस कंट्री, बेसिकली कंट्री में, तो उसके अलावा अदर कंट्री में आप काम कर रहे हो और आपको पे मिल रहा है, वो ओवरसीज पे है। तो ये डेफिनेशन है, बीट सी आंसर होगा। पे ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर हिज सर्विसेज इन ए कंट्री अदर देन द कंट्री ऑफ हिज डोमिसाइल। ठीक है, आंसर इज बिट सी। चलो क्वेश्चन नंबर 14 को चलेंगे। सब्सटेंटिव पे मीन्स एक्चुअली एक्चुअल पे होता है, उसमें कुछ स्पेशल पे, पर्सनल पे, कुछ स्पेशल एमोलुमेंट अकॉर्डिंग टू द जनरल एंड स्पेशल ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट, ये सब इंक्लूड नहीं होगा। सब्सटेंटिव पे, एक्चुअल पे, बेसिकली स्पेशल पे, पर्सनल पे, एडिशनल एमोलुमेंट्स बाय द स्पेशल और जनरल ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट, वो सब अलग बात है, वो सब अलग केस में होता है। स्पेशल पे कोई डिफिकल्ट वर्क किया कि कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला, कुछ एडिशनल वर्क मिला, वहाँ पर आपको स्पेशल पे मिलेगा। पर्सनल पे आपका पे रिवीजन हुआ, उसमें आपका पे कम हो गया, तो वो लॉस को कवर अप करने के लिए आपको एक एडिशनल पे मिल रहा है। एमोलुमेंट, सपोज ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने कुछ स्पेशल ऑर्डर दे दिए, आपको एडिशनल एमोलुमेंट्स मिल रहा है, और वो सब्सटेंटिव पे में इंक्लूड नहीं होगा। तो ऑल ऑफ द अबव। सब्सटेंटिव पे मीन्स पे अदर दैन, इस पे अदर दैन, तो ऑल ऑफ द अबव। अदर दैन स्पेशल पे, अदर दैन पर्सनल पे, अदर दैन एमोलुमेंट्स, क्लास डच पे। क्वेश्चन नंबर 15, स्पेशल पे और स्पेशल अलाउंस इज एन एडिशन टू द एमोलुमेंट्स ऑफ ए पोस्ट और ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट। स्पेशल पे कब मिलेगा? कुछ एडिशनल वर्क क्या एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ आर्डुअस, डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड वर्क आपको दिया गया, वहाँ पर आपको स्पेशल पे मिलेगा, बस स्पेशल अलाउंस मिलेगा। स्पेशल पे को हम स्पेशल अलाउंस अभी बोल रहे हैं,
स्पेशल अलाउंस मिलेगा। तो आंसर इज देखिए एक आर्डुअस नेचर ऑफ ड्यूटीज़ है और कोई कुछ आपको स्पेसिफिक एडिशन टू द वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दो चीज़ें। तो आंसर इज बी डी, बोथ बी एंड सी। स्पेशल अलाउंस अभी स्पेशल पे नहीं है, उसको हम स्पेशल अलाउंस बोल रहे हैं, ठीक है, इसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आंसर इज बी डी। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, स्पेशल अलाउंस इज एडमिसेबल फॉर कैश हैंडलिंग ड्यूटीज़ ऑफ ए कैशियर। जो कैशियर जो कैश हैंडलिंग ड्यूटीज़ कर रहा है उसको स्पेशल अलाउंस मिल रहा है। असिस्टिंग कैशियर्स, बैंक से जो मनी आता है कैशियर को जो असिस्टेंट हेल्प करता है, वो जो एडिशनल वर्क होता है, जो असिस्टेंट एक्चुअली हेल्प करता है कैशियर को बैंक से पैसा लाने के लिए, वहाँ पर स्पेशल अलाउंस मिलता है उसको। ऑपरेटिंग फ्रैंकिंग मशीन्स, फोटोस्टैट मशीन्स, ये सब इस एडिशनल वर्क होता है, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उसमें स्पेशल पे मिलता है। तो ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि हम जानते हैं कुछ एडिशनल वर्क, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ डिफ़िकल्ट वर्क, कुछ आर्डुअस वर्क, कुछ कॉम्प्लिकेटेड वर्क, के कुछ डिफ़िकल्ट वर्क, इसके लिए हमको स्पेशल अलाउंस मिलता है। तो ये सब केस में स्पेशल अलाउंस मिलता है। आंसर इज बी डी। चलो क्वेश्चन नंबर 17, स्पेशल अलाउंस इज ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट स्टाफ फॉर कैरिंग स्पेशल सेंसिटिव फाइल्स एंड रिकॉर्ड्स। इसमें नहीं है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। एक्चुअली आंसर बीट बी है। आप कुछ सेंसिटिव फाइल्स एंड रिकॉर्ड्स को कैरी कर रहे हो तो आपको स्पेशल अलाउंस नहीं है। स्पेशल अलाउंस कब मिलता है ना, कुछ ऐसा कुछ आर्डुअस वर्क, डिफिकल्ट वर्क और कॉम्प्लिकेटेड वर्क आपको असाइन किया गया है, आप कुछ एडिशनल वर्क कर रहे हो, आप कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम कर रहे हो, वहाँ पर स्पेशल अलाउंस मिल रहा है। आप ऐसा नहीं है कि आप कुछ सेंसिटिव फाइल्स एंड रिकॉर्ड्स को कैरी कर रहे हो तो इसके लिए आपको स्पेशल अलाउंस मिलेगा, नो। तो ये स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स। लास्ट को चलेंगे, सुपर न्यूमररी पोस्ट। ये सुपर न्यूमररी पोस्ट क्या होता है? सुपर न्यूमररी पोस्ट में क्या है, सपोज आप लियन लेकर हायर पोस्ट में गया था और सपोज आपका पेरेंट पोस्ट को आप रिवर्ट कर गए। जब आप पेरेंट पोस्ट को रिवर्ट किए तब कोई पोस्ट वैकेंट नहीं है, आपका पोस्ट के हिसाब से, पेरेंट पोस्ट के हिसाब से कोई पोस्ट वैकेंट नहीं है। तब वहाँ पर एक न्यू पोस्ट आपके लिए क्रिएट किया जाएगा, आपके लिए एक न्यू पोस्ट क्रिएट किया जाएगा, क्योंकि आप लियन लेकर गए थे हायर पोस्ट में, आपको वहाँ पर अच्छा नहीं लगा, तो वहाँ पर जो प्रोबेशन पीरियड बेसिकली 2 ईयर्स है, आप अच्छा नहीं लगा तब आप आपका पेरेंट पोस्ट को रिटर्न कर गए, मगर पेरेंट पोस्ट में कोई वैकेंट नहीं है, तब आपको ऑब्जर्व करने के लिए एक स्पेशल पोस्ट क्रिएट होगा, वो है सुपर न्यूमररी। ये फिर ख़त्म कब होगा सुपर न्यूमररी पोस्ट ना, जब आपको प्रमोशन मिल जाएगा, जब कोई रेगुलर पोस्ट आपके लिए वैकेंट हो जाएगा, कि आपका रिटायरमेंट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली सुपर न्यूमररी पोस्ट वो क्या होगा, सीज हो जाएगा। तो ये एक्चुअली एक परमानेंट पोस्ट है, जो सुपर न्यूमररी पोस्ट है वो एक परमानेंट पोस्ट है। मैं आपको अच्छे से बता दिया कि सुपर न्यूमररी पोस्ट एक स्पेशल पोस्ट क्रिएट किया जाता है एक एम्प्लॉय को ऑब्जर्व करने के लिए। लियन लेकर गया था, मगर जब वो पेरेंट पोस्ट को रिटर्न कर गया, वो न्यू पोस्ट में प्रोबेशन पीरियड में था, उसको अच्छा नहीं लगा, वो भी रिटर्न कर गया पेरेंट पोस्ट में, और कोई रेगुलर पोस्ट वैकेंट नहीं है, तो उस केस में आपके लिए एक स्पेशल पोस्ट क्रिएट किया जाता है। और जब आपका प्रमोशन हो जाएगा, कि रेजिग्नेशन आप दे देते हो, कि आपका ऑटोमेटिकली बेसिकली रिटायरमेंट हो जाता है, और ऐसा कुछ रेगुलर पोस्ट वैकेंट हो जाता है जिसमें आपको ऑब्जर्व कर दिया जाता है, तो उस केस में ऑटोमेटिकली आपके लिए जो स्पेशल पोस्ट क्रिएट किया गया था, जो सुपर न्यूमररी पोस्ट क्रिएट किया गया था, उसको सीज कर दिया गया। ठीक है, उसी चीज़ के ऊपर मैं यहाँ पर लिख दिया, इट इज़ ऑलवेज ए परमानेंट पोस्ट बट इट इज़ नॉर्मली क्रिएटेड टू अकोमोडेट द लियन ऑफ एन ऑफिसर, टू अकोमोडेट द लियन ऑफ एन ऑफिसर ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सच रेगुलर पोस्ट। इट इज़ पर्सनल टू द ऑफिसर फॉर होम इट इज़ क्रिएटेड एंड नो अदर ऑफिसर कैन बी अपॉइंटेड अगेंस्ट सच ए पोस्ट। ये जो स्पेशली पर्टिकुलर ऑफिसर को ऑब्जर्व करने के लिए एक स्पेशल पोस्ट क्रिएट किया जाता है, और कोई ऑफिसर को अकोमोडेट करने के लिए नहीं, एक स्पेशल पोस्ट क्रिएट किया जाता है एक पर्टिकुलर ऑफिसर को अकोमोडेट करने के लिए। तो ये कब अबोलिश होता है? स्टैंड अबोलिश्ड व्हेन रेगुलर पोस्ट बिकम अवेलेबल टू अकोमोडेट द लियन ऑफ दैट ऑफिसर। सपोज सुपर न्यू आपके लिए स्पेशल पोस्ट क्रिएट किया गया और एक रेगुलर पोस्ट वैकेंट हो गया, वहाँ पर आपको अकोमोडेट कर दिया गया, तब ऑटोमेटिकली आपके लिए जो स्पेशल पोस्ट क्रिएट किया गया था वो ऑटोमेटिकली सीज हो जाएगा। और कुछ केस में अबोलिश होता है, इट स्टैंड्स अबोलिश्ड एज सून एज ऑफिसर फॉर होम द पोस्ट क्रिएटेड गॉट रिटायरमेंट। आपके लिए पोस्ट क्रिएट किया गया था, आपका रिटायर हो गया, कि आपका हिसाब से कोई पोस्ट वैकेंट हो गया, वहाँ पर वैकेंट पोस्ट में आपको अकोमोडेट कर दिया गया, कि आपका प्रमोशन हो गया, तो इस केस में आपका जो पोस्ट आपके लिए क्रिएट किया गया था वो सीज हो जाएगा। तो ये आज का वीडियो था, फंडामेंटल रूल 1 to 9, ये मेरा फर्स्ट पार्ट था। सो माय फ्रेंड्स, आगे मैं अदर रूल्स में लाऊंगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल असित गवर्नमेंट रूल गुरु। प्लीज़ शेयर माय वीडियो, प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड ऑल्सो कमेंट माय वीडियो, so I rectify myself, I resurrect myself. So again, namaskar and pranam to all of you. Please
go through the video till the end, you can get all important informations about the fundamental rule 1 to 9. Thank you and namaskar.